Hello everyone, this is Jyoti and welcome back to my YouTube channel. Hope friends you all are fine and preparing for your upcoming examinations safely at your home. So friends, today in this video I'm going to discuss about weekly current affair from 1st April to 7th April 2021. So this is a quick revision video. So you have to stay with us from starting to end. And friend, if you are new to my channel, then please subscribe my channel and like the video and share with your friends. So friends, let's start the video. Who has been appointed as the 48th Chief Justice of India? First question. Who has been appointed as the 48th Chief Justice of India? एन वी रमना जी को बनाया गया 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इससे पहले 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो शरद अरविंद बोबड़े जी, ए बोबड़े जी थे। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंश्योरेंस? डिजिटल इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। डिजिटल इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सो द ब्रांड एम्बेसडर इज विराट कोहली। The next question is, who has been appointed as the new revenue secretary under the Ministry of Finance? New revenue secretary किसे अपॉइंट किया गया है? तरुण बजाज। So new revenue secretary has been appointed is तरुण बजाज. Who has been appointed as chairman and managing director of SIDBI? So friends, यहाँ पे SIDBI से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आंसर होगा यस रामनन। एंड सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार और, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट है 2 अप्रैल 1990 एंड हेडक्वार्टर इज लखनऊ यूपी एंड डायरेक्टर ऑफ सिडबी इज यस रामनन। नेक्स्ट, who has been appointed as the head of the BCCI anti-corruption unit? BCCI anti-corruption unit के हेड किसे अपॉइंट किया गया है? सबीर हुसैन शेखदम खंडेबावला। सो द हेड ऑफ द BCCI anti-corruption unit is सबीर हुसैन शेखदम खंडेवाल। Next question, who has been appointed as the chairperson of the Public Enterprise Selection Board? Public Enterprise Selection Board के चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? मल्लिका श्रीनिवासन जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the Director General of Employee State Insurance Corporation? जिसका शॉर्ट फॉर्म है ESIC। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ESIC का फुल फॉर्म क्या है? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसके डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया है? मुखमिथियस भाटिया को डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च? NCAER का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसके डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? पूनम गुप्ता को। किसे बनाया गया है? पूनम गुप्ता को, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड every year on which date? very important question, generally asked in the every competitive examination. विश्व स्वास्थ्य दिवस, that is world health day, is observed every year on which date? 7th April. And the theme, most important part is the theme. We have to remember this. The theme for World Health 2021 is building a fairer, healthier world for everyone. Building a fairer, healthier world for everyone. Next question, what is the theme of the World Autism Awareness Day? So friends, in last year in SBI Clerk, this question has been asked that World Autism Day is celebrated on which day? 2nd April. And this year the theme is recognize the genius in me. Recognize the genius in me. So friends, you have to learn the theme and the respected date of the following. Next one is, International Children Book Day is organized every year on which date? To inspire love of reading and to call attention to children books. International Children Book Day
इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को मनाया जाता है क्या फ्रेंड्स? इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे एंड वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 among 156 कंट्री रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जिसमें 156 कंट्री में इंडिया का रैंक क्या दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सो फ्रेंड्स क्या दिया गया है? 140th ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 156 कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टनर विथ महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड फॉर फास्ट ट्रैक डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस इट लॉजिस्टिक फ्लीट। सो महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड ने फास्ट ट्रैक डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो महिंद्रा ने किसके साथ की है? फ्लिपकार्ट के साथ। सो फ्लिपकार्ट अब महिंद्रा के साथ करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पार्टनरशिप। नेम द इनिशिएटिव जॉइंटली लॉन्च बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। सो फ्रेंड्स यहाँ पूछा जाएगा कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर क्या कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन एंड ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। सो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द इनिशिएटिव जॉइंटली लॉन्च बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा टू इन्हांस देयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। सो एक जॉइंटली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है दोनों मिनिस्ट्री के द्वारा। एक कौन सा? हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जिसके हर्षवर्धन जी हैं और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। जो उस इनिशिएटिव का क्या नाम है? अनामाया। सो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अब एग्जाम में ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हट के स्कीम से पूछा जाता है, तो इसे हमें याद कर लेना है। अनामाया ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है हाल में अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज़ वॉन द नंबर 1 रैंक इन एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड इन यूनिवर्सिटी 2020। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में जिसको संघाई रैंकिंग भी कहा जाता है उसमें से कौन है जो नंबर 1 रैंकिंग जिसे नंबर 1 रैंकिंग मिला? आंसर क्या है फ्रेंड्स? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को नंबर 1 रैंकिंग दिया गया। Our next question is India's biggest floating solar plant with the capacity of 100 megawatt is expected to become operational in which state? So friends, इंडिया का बिगेस्ट जो फ्लोटिंग है सोलर प्लांट वो कहाँ पे ऑपरेशनल किया जा रहा है? तेलंगाना में, जिसका कैपेसिटी कितना होगा? 100 वाट कैपेसिटी होगा तेलंगाना में, ये ऑपरेशनल होने जा रहा है। माटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? माटी फेस्टिवल is celebrated in which part of India? That is Purvanchal states of UP. Amboli is located in which state in Western Ghat that has been declared as a biodiversity heritage recently? अम्बोली जिसे हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है वो है कहाँ? तो फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अम्बोली इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। The next question is which state emerged as the highest contributor to the small saving scheme such as NSC and PPF? So friends यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकता है। पहले कि NSC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एंड PPF ये बैंकिंग टर्म है फ्रेंड्स। तो PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और इसमें कौन से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने दिया है। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन स्मॉल सेविंग स्कीम में NSC और PPF में वेस्ट बंगाल की सरकार ने दिया है। Next question is which state has launched a unique gift scheme to promote COVID vaccination in the state? So friends क्वेश्चन क्या है कि which state has launched a unique gift scheme लॉन्च किया गया है ताकि कोविड वैक्सीनेशन को प्रमोट किया जाए स्टेट में, और ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट है? यूपी। तो फ्रेंड्स अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोग वैक्सीनेशन के प्रति उतने जागरूक नहीं, तो हर स्टेट अपनी तरफ से वैक्सीनेशन लेने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। तो इसी मुहिम के तहत यूपी ने एक यूनिक गिफ्ट स्कीम लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एवर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट हेल्ड इन विच स्टेट? अबू धाबी में हो रहा है फ्रेंड्स। UAE अबू धाबी में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन और लॉजिस्टिक्स समिट सबसे पहला है ये फर्स्ट एवर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट।
Our next question is who has been selected for the 2021 GD बिरला अवार्ड? किसे दिया गया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए? सुमन चक्रवर्ती। सो फ्रेंड्स, किसे दिया गया है GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए? सुमन चक्रवर्ती को। हु हैज़ टॉप फोर्ब्स एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में इस बार 4 कंसिक्यूटिव ईयर से कौन टॉप कर रहे हैं? जेफ बेजोस। कौन कर रहे हैं? जेफ बेजोस। इसके बाद इलॉन मस्क और मुकेश अंबानी अपने इंडिया के 10th पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड? सो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 का किसे दिया गया है? तो ये आप सभी को पता होगा फ्रेंड, रजनीकांत जी को दिया गया है। और रजनीकांत जी फेमस सुपरस्टार हैं और इनकी बहुत सारी फिल्में आपको पता ही होगा। रोबोट जो कि बहुत चर्चित मूवी है, तो बहुत सारी फिल्मों में ये जाने जाते हैं और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा जगत का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जहाँ पे रेसिपिएंट को 10 लाख दिया जाता है। सो इस बार 2019 के लिए किसे दिया गया है? रजनीकांत जी को। Who has been selected for the सरस्वती सम्मान 2020 by KK बिरला फाउंडेशन? ये सरस्वती सम्मान 2020 जो कि KK बिरला फाउंडेशन जो कि KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस पर किसे दिया जा रहा है? डॉक्टर शारण कुमार लिम्बले जी को दिया जा रहा है सरस्वती सम्मान KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा, जो कि इनकी पुस्तक जो थी अनटचेबल पे आधारित थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द 2023, यहाँ पे वेन नहीं होगा, 2023 बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 में जो होने जा रहा है वो कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में। सो कहाँ होगा फ्रेंड्स? उज्बेकिस्तान में। द 11th एडिशन ऑफ द US स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज ब्रज प्रहार वॉज कंडक्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ब्रज प्रहार हिमाचल प्रदेश में है, इस बार कंडक्ट करवाया गया है। ब्रज प्रहार जो एक्सरसाइज है, ये पूछ सकता है फ्रेंड कि ब्रज प्रहार जो एक्सरसाइज है वो कौन से कंट्री के बीच करवाया जाता है? तो US और इंडिया के बीच में करवाया जाता है। और इस बार कौन सा एडिशन था? तो इस बार 11th एडिशन था। हुआ कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सो ये फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है। इस बार से हमें हर एडिशंस को एक बार नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना चाहिए, और जब भी हम रीडिंग डालें या अपने नोट्स को दोहराएं तो एडिशंस को खास कर हमें 2 से 3 बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अब भी जो इतने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं SBI के, IBPS के, RRB के, PO के, कलर के, जो भी आप SSC रेलवे कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो अब क्वेश्चंस क्या होता है कि आपको घुमा के पूछ दिया जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन सब बच्चे पढ़ते हैं पर एक एडिशंस कोई नहीं पढ़ता है। तो हमें क्या करना है कि अपने आपको इस एग्ज़ाम के अनुसार, हर एग्ज़ाम के अनुसार ढालना चाहिए। तो हमें इसके साथ ही एडिशंस पे भी याद करना चाहिए और कमांड रखनी चाहिए। अगर डे पढ़ रहे हो तो डे के साथ थीम भी, कि 2021 का थीम क्या था और इस बार कौन सा एडिशन था, तो ये सब हमें याद करना ज़रूरी है ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ The Reserve Bank of India enhanced the limit of maximum balance at the end of the day maintenance in payment bank from ₹1 lakh to 2 lakh. सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो लिमिट था, पहले मैक्सिमम लिमिट पेमेंट बैंक का, कोई भी पेमेंट बैंक का मैक्सिमम लिमिट अब कितना तक सीमित था? 1 लाख तक, पर उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2 लाख। और कोई भी पूछे फ्रेंड्स कि पेमेंट बैंक क्यों स्टार्ट किया गया RBI के द्वारा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन पे जोर देने के लिए ये किया गया। और बहुत सारे पेमेंट बैंक है फ्रेंड्स, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। सो ये इस टाइप के बहुत सारे पेमेंट बैंक इंडिया में है, और एयरटेल पेमेंट बैंक फर्स्ट पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया था। Okay friends, the next question is which digital payment company has become the first company to cross 1 billion transaction on unified payment infrastructure? So UPI.
इसमें से कौन सा टॉप किया है डिजिटल पेमेंट से? फ़ोनपे। लोगों ने फ़ोनपे से जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और ये क्या हो गया, फर्स्ट कंपनी हो गया जो कि 1 बिलियन ट्रांजैक्शन इस ऐप के द्वारा, इस डिजिटल पेमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है। हम लोग अपने मोबाइल वॉलेट में बहुत सारे डिजिटल पेमेंट कंपनी के का ऐप रखते हैं, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, आप गूगल पे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि यूपीआई का से हम लोग अपना मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो उसमें फ़ोनपे टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच बैंक हैज़ पार्टनर विद द डिजिटल पेमेंट कंपनी फ़ोनपे फॉर द इशुएंस ऑफ फास्टैग यूजिंग अप्स ऑन द फ़ोनपे ऐप? तो इसके लिए कौन सा बैंक लॉन्च किया है, पार्टनरशिप किया है? आईसीसीआई ने। तो आईसीसीआई ने क्या किया है, फास्टैग के लिए फ़ोन पे के साथ इशुएंस करने के लिए किसका किया है, कौन से बैंक के साथ पार्टनरशिप? आईसीसीआई बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विद द एन स्टोर टेक्नोलॉजी? फ्रेंड यहाँ ये पूछेगा कि एन स्टोर टेक्नोलॉजी से विच स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर किया है विद एन स्टोर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड टू डिजिटलाइज ऑफलाइन रिटेलर्स एंड स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। सो कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि अब पार्टनरशिप किया है एन स्टोर के साथ, ताकि वो डिजिटलाइज कर सके किसको, ऑफलाइन जो रिटेलर है और स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया जो भी है उसके साथ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है किसके साथ, एन स्टोर के साथ, ताकि ऑफलाइन रिटेलर्स और स्मॉल बिजनेसमैन को भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइन अ लोन एग्रीमेंट ऑफ $1 बिलियन विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन टू प्रोवाइड लोन फॉर द होल रेंज ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर इन इंडिया? सो फ्रेंड्स, कौन सा बैंक है जो कि लोन एग्रीमेंट साइन किया है $1 का, किसके साथ, जापान बैंक के साथ, और किस लिए, ताकि वो लोन प्रोवाइड कर सके बिजनेस रेंज को बढ़ाने के लिए जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में। वो उसके लिए कौन सा बैंक साइन किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, आगामी जो भी एसबीआई का एग्जाम होगा तो इसमें क्वेश्चन याद सकता है कि एसबीआई ने किसके साथ साइन किया $1 बिलियन का एग्रीमेंट, तो जापान के बैंक के साथ, ताकि जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया ऑपरेशनल हो सके भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 6th एनुअल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक? सो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो बैठक था, एनुअल बैठक था, वो कौन सा था, 6th एनुअल मीटिंग थी, और उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन किया, तो कौन किया, बैंक की जब बात हो गई तो कौन रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी ने इसे क्या किया, रिप्रेजेंट किया। मारुति सुजुकी हैज़ साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच बैंक ऑफर ऑटो फाइनेंस डील टू कस्टमर? तो मारुति सुजुकी ने किसके साथ साइन किया है फ्रेंड, डील कर्नाटका बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ बिकम द को प्रमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ 12.99% स्टेट बाय द बैंक इन द कंपनी? सो विच बैंक हैज़ बिकम द को प्रमोटर ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का को प्रमोटर कौन सा बन गया है फ्रेंड्स, वो है एक्सिस बैंक। कब बना, 12.99 एक्विजिशन के बाद। सो दिस इज़ द होल वीडियो ऑफ द फर्स्ट वीक। हो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को सब लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपकमिंग जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके उसके लिए आपको बेल आइकन पे प्रेस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अपने आगामी जो भी आपको अपडेट मिलेगा, इसके कुछ ही टाइम के बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगी, सेकंड वीक का, क्योंकि 16 अप्रैल हो चुका है। तो सेकंड पार्ट मैं इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, तो आपका सेकेंड वीक भी आप पढ़ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको इनिशिएटिव अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसे शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे अभी हम लोगों की तरह तैयारी जो कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ क्विक रिविजन वीडियो, होप यू लाइक दिस। सो
If you like this, so please friends subscribe the channel. Thanks for watching. God bless you all.